Hello, class 7. Today we are going to start a new chapter, that is respiration in plants and animals. Students, all the organisms get the energy they need from food. First, the food molecules are broken down into simpler and simpler soluble molecules. Then the simple molecules are carried to the all the cells of the body, and in the cells these molecules finally combine with oxygen to produce energy. This is the last process, which is known as respiration. We will study in detail what happens in respiration, what are the steps, how does it occur. Actually, we need to study the whole living process, life processes, in a sequence. We have studied the nutrition, where the food molecules are procured, obtained, है ना. Then their digestion is taken place. After digestion, what happens? The molecules are broken down through respiration, that we are going to study that. Then they are transported to each and every cells, and after getting the energy, the waste material will be expelled out from the body. That is what we will study in excretion. So mainly four processes are there which are needed to be studied very carefully. That is, first is nutrition, second is respiration, third is transportation, fourth is excretion. So we are at respiration, where we will see how the food molecules are broken down, है ना. Now the book says the respiration involves two steps, that is external respiration and internal respiration, and these things are true for all kind of organisms: multicellular, unicellular, aquatic animals, terrestrial animals. तो ये सब के लिए है, ठीक है. Now what is external respiration? We need to study that. External respiration, the taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide, is called external respiration और breathing. जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो नाक के पास, जो हम यहाँ से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिस इज़ ब्रीदिंग, ठीक है. बट ये अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी में क्या क्या करता है, वो कंप्लीट प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाएगा. अब उसमें क्या क्या होता है डिटेल हम लोग देखेंगे बाद में. इट टेक्स प्लेस डिफरेंटली इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. जितने ऑर्गेनिज्म दुनिया में है, सबके पास अपना अलग अलग तरीका है रेस्पिरेशन करने का. सम ऑर्गेनिजम्स यूज देयर लंग्स टू ब्रीथ, सम यूज गिल्स, while others use their skin. We and all the other land organisms take in oxygen from the air, while most aquatic animals organisms use the oxygen dissolved in water. ठीक है. This is external respiration. Now what happens in internal respiration? Inside the cell, हमारा बॉडी सेल्स है, उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन कंबाइंस विद ग्लूकोज, दैट इज सिंपल फूड, टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है. ये जो ऑक्सीजन हम सांस के जरिए लेते हैं अंदर, ये जाता है और ग्लूकोज के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, विच इज़ कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. अब ये जो मिलता है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, तो बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर वाटर प्रोड्यूस होता है, और ये जो अंदर सेल के अंदर ये सारा काम हो रहा है, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं. तो आप समझना, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. जबकि हमारे सेल के अंदर जा कर के जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से कंबाइन करता है
और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, ये क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म, और इतना काम हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इट इन्वॉल्व्स मेनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड द सम टोटल ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। कहता है कि इतना काम हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और इस काम को हम केमिकल रिएक्शन के माध्यम से शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कैसे? ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, 6O2। ठीक है, बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 6CO2 प्लस वाटर H2O प्लस एनर्जी दैट इज ATP, है ना। तो ये इतना काम हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, एक टेबल होगा यहाँ पर, ये रहा टेबल, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। उन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर उन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो लंग्स यूज़ करते हैं, कुछ हैं जो गिल्स यूज़ करते हैं, कुछ हैं जो स्पायरेकल्स यूज़ करते हैं, कुछ हैं जो स्किन यूज़ करते हैं। तो ये जब यूज़ कर रहे होते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है फंक्शन, ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। ओके।